এবার দুর্নীতির ছিটে সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষা নিটেও প্রথম স্থানে একসঙ্গে ৬৭ জন পরীক্ষার্থী। ফলাফল প্রকাশ পেতেই রাস্তায় ছাত্র রোষ। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। নতুন করে পরীক্ষার আয়োজন করতে হবে দাবি বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের। ২৩ লাখ ছাত্রছাত্রীর জীবন নিয়ে ছেলেখেলা। সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষা নিট ইউজির ফল প্রকাশ হতেই দেশ জুড়ে ছাত্র বিক্ষোভ। পড়ার বই ছেড়ে রাস্তায় আছড়ে পড়েছে ছাত্রদের রাগ। মামলা গড়িয়েছে শীর্ষ আদালত ও দিল্লি আদালতে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, যেভাবে ছাত্রদের রোষ আছড়ে পড়েছে দিকে দিকে, তাতে এটা স্পষ্ট গাফিলতি তো হয়েছে। हियरिंग 2-4 बार और हो गई तो ये लोग काउंसलिंग पूरी कर देंगे, बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हियरिंग जल्दी और हमें रीनीट जल्दी से जल्दी हो पाए। नेक्स्ट हियरिंग अब होगी, अगर फिर वो आगे डेट बढ़ती है तो मतलब मैं रीनीट की तैयारी करूँ या फिर नेक्स्ट ईयर की ड्रॉप की तैयारी करूँ, अब ये क्लियर नहीं हो पा रही है। तो हम ये चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। পড়ুয়াদের দাবি, নতুন করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, স্থগিত করতে হবে কাউন্সেলিং। ৫ই মে নিট ইউজির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে পরীক্ষায় গ্রেস নাম্বার, একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। নিট ইউজি হয় ৭২০ নম্বরের, ৪ নম্বরের ১৮০টি প্রশ্ন থাকে। এবার নিটে বসেছিলেন ২৩ লক্ষ পরীক্ষার্থী। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে ৭২০-র মধ্যে ৭২০ পেয়েছেন মোট ৬৭ জন। কেউ কেউ পেয়েছেন ৭১৮ কিংবা ৭১৯, আর এখানেই সন্দেহ। तो जो नीट का एग्जाम है, इसमें आप सारे सवाल अगर सही करते हैं तो मैक्सिमम स्कोर होता है 720। अब एक सवाल सही करने के मिलते हैं 4, ना करने के 0, गलत करने के -1। अब मान लेते हैं एक बच्चे ने एक सवाल छोड़ दिया, नहीं किया, तो 720 में 4 कम कर लिया, 716। मान लेते हैं एक सवाल गलत कर दिया तो 4 तो नहीं मिले क्योंकि वो सवाल तो छूटा ही, और -1 और लग गया तो 715। तो जो स्कोर हो सकता है वो 720 के बाद अगला स्कोर 715 और 716। इस बार इन्होंने 719 नंबर दे दिया। সুপ্রিম কোর্টে মামলাকারীদের প্রশ্ন, ৬৭ জন পরীক্ষার্থী ৭২০ নম্বরই পেল কিভাবে? গ্রেস নাম্বারই বা দেওয়া হলো কিসের ভিত্তিতে? उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया 7 जून को, किसी को नहीं बताया कि हमने ग्रेस नंबर दिए। इतिहास में पहली बार आप ग्रेस नंबर दे रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है बताने की। उसके बाद गलती से ग्रेस नंबर्स क्यों दिए इन्होंने बहुत बाद में बताया कि बच्चों का कुछ सेंटर पे समय का नुकसान हुआ था तो हमने ग्रेस नंबर दिए। तो समय का नुकसान तो हर साल बच्चों का कई सेंटर्स पे होता है। 1-2 सेंटर्स पे तो नहीं होगा ना, ये तो अगर प्रॉब्लम है तो सारे देश भर में होगा। इसको पता लगाने का कोई तरीका है ही नहीं सर, मैकेनिज्म ही नहीं है इसको। जिसको मन करे वो ग्रेस मार्क्स दे देंगे। जो हाई कोर्ट चला गया, जिसने पिटीशन डाल दी, उनको इन्होंने ग्रेस। और जो नहीं गए वो नहीं गए, वो अनपढ़ हैं, वो बेचारे गरीब घर के बच्चे जिनको नहीं पता हाई कोर्ट जाना है, वो सफर करें और क्या। এই মামলায় ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ কে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২০২৩ সালে টপ স্কোরারের তালিকায় ছিলেন মাত্র 2 জন, ২০২২-এ মাত্র 1 জন, ২০২১-এ 3 জন, আর ২০২০-তে মাত্র 1 জন পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ নম্বর। আর চলতি বছর টপ স্কোরার হলেন ৬৭ জন পরীক্ষার্থী। এটা কি নেহাতি কাকতালীয়, নাকি লুকিয়ে রয়েছে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি? মুন্না ভাই এমবিবিএসদের ডাক্তার বানাতে কোন প্রভাবশালীরা সিন্ডিকেট খুলে বসেছে, তার জবাব চায় বাংলা। রিপাবলিক বাংলা। এবার দুর্নীতির ছিটে সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষা নিটেও প্রথম স্থানে একসঙ্গে ৬৭ জন পরীক্ষার্থী। ফলাফল প্রকাশ পেতেই রাস্তায় ছাত্র রোষ। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। নতুন করে পরীক্ষার আয়োজন করতে হবে দাবি বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের। ২৩ লাখ ছাত্রছাত্রীর জীবন নিয়ে ছেলেখেলা। সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষা নিট ইউজির ফল প্রকাশ হতেই দেশ জুড়ে ছাত্র বিক্ষোভ। পড়ার বই ছেড়ে রাস্তায় আছড়ে পড়েছে ছাত্রদের রাগ। মামলা গড়িয়েছে শীর্ষ আদালত ও দিল্লি আদালতে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, যেভাবে ছাত্রদের রোষ আছড়ে পড়েছে দিকে দিকে, তাতে এটা স্পষ্ট গাফিলতি তো হয়েছে। हियरिंग 2-4 बार और हो गई तो ये लोग काउंसलिंग पूरी कर देंगे, बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हियरिंग जल्दी और हमें रीनीट जल्दी से जल्दी हो पाए। नेक्स्ट हियरिंग अब होगी, अगर फिर वो आगे डेट बढ़ती है तो
तो मतलब मैं रीनीट की तैयारी करूं या फिर नेक्स्ट ईयर की ड्रॉप की तैयारी करूं, अभी ये क्लियर नहीं हो पा रही है। तो हम यही चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। পড়ুয়াদের দাবি নতুন করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, স্থগিত করতে হবে কাউন্সেলিং। 5ই মে নিট ইউজির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকে পরীক্ষায় গ্রেস নাম্বার, একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। নিট ইউজি হয় 720 নম্বরের, 4 নম্বরের 180টি প্রশ্ন থাকে। এবার নিটে বসেছিলেন 23 লক্ষ পরীক্ষার্থী। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে 720-র মধ্যে 720 পেয়েছেন মোট 67 জন, কেউ কেউ পেয়েছেন 718 কিংবা 719। আর এখানেই সন্দেহ। तो जो नीट का एग्जाम है इसमें आप सारे सवाल अगर सही करते हैं तो मैक्सिमम स्कोर होता है 720। अब एक सवाल सही करने के मिलते हैं 4, ना करने के 0, गलत करने के -1। अब मान लेते हैं एक बच्चे ने एक सवाल छोड़ दिया, नहीं किया, तो 720 में 4 कम कर लिया, 716। मान लेते हैं एक सवाल गलत कर दिया तो 4 तो नहीं मिले क्योंकि वो सवाल तो छूटा ही, और -1 और लग गया तो 715। तो जो स्कोर हो सकता है वो 720 के बाद अगला स्कोर 715 और 716। इस बार इन्होंने 719 नंबर दे दिया। সুপ্রিম কোর্টে মামলাকারীদের প্রশ্ন, 67 জন পরীক্ষার্থী 720 নম্বরই পেল কিভাবে? গ্রেস নাম্বারই বা দেওয়া হলো কিসের ভিত্তিতে? उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया 7 जून को, किसी को नहीं बताया कि हमने ग्रेस नंबर दिए। इतिहास में पहली बार आप ग्रेस नंबर दे रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है बताने की। उसके बाद गलती ग्रेस से नंबर्स क्यों दिए इन्होंने बहुत बाद में बताया कि बच्चों का कुछ सेंटर पे समय का नुकसान हुआ था तो हमने ग्रेस नंबर दिए। तो समय का नुकसान तो हर साल बच्चों का कई सेंटर्स पे होता है। 1-2 सेंटर्स पे तो नहीं होगा ना, ये तो अगर प्रॉब्लम है तो सारे देश भर में होगा। इसको पता लगाने का कोई तरीका है ही नहीं सर, मैकेनिज्म ही नहीं है इसको। जिसको मन करे वो ग्रेस मार्क्स दे देंगे। जो हाई कोर्ट चला गया, जिसने पिटीशन डाल दी उनको इन्होंने ग्रेस और जो नहीं गए, जो नहीं गए वो नहीं गए, वो अनपढ़ हैं, वो बेचारे गरीब घर के बच्चे हैं जिनको नहीं पता हाईकोर्ट जाना है, वो सफर करें और क्या। এই মামলায় ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ কে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। 2023 সালে টপ স্কোরারের তালিকায় ছিলেন মাত্র 2 জন, 2022-এ মাত্র 1 জন, 2021-এ 3 জন, আর 2020-তে মাত্র 1 জন পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ নম্বর। আর চলতি বছর টপ স্কোরার হলেন 67 জন পরীক্ষার্থী। এটা কি নেহাতি কাকতালীয় নাকি লুকিয়ে রয়েছে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি? মুন্না ভাই এমবিবিএসদের ডাক্তার বানাতে কোন প্রভাবশালীরা সিন্ডিকেট খুলে বসেছে, তার জবাব চায় বাংলা। রিপাবলিক বাংলা।